all kinds. We had done simple present or the present indefinite tense, then we had done present continuous tense, and then we had done present perfect tense, right? So today we'll be continuing with past tense. I hope some of you at least might have heard or listened to the audio, कुछ बच्चों ने audio सुन लिया होगा, right? So now past tense क्या होता है basically? Past means the time that has gone. जो टाइम जा चुका है हम उसे पास्ट टेंस बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं, राइट? ठीक है, सो पास्ट टेंस में हम उन एक्शंस के बारे में बात करेंगे जो एक्शंस हमारे पहले हो चुके हैं, राइट? ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एंड द फर्स्ट वन इज, this is, we have already discussed this thing, 3 types of tenses. Okay, so first one is simple past tense or the past indefinite tense. And what is the rule for that? So the rule for that is we have the subject first of all, and present में V1 था, अब past में V2 हो जाएगा. V2 means, what is V2? Can anybody tell me what do you mean by the word V2? V2 means second form. Very good. Very good. Second form. I didn't ask. Ains, can you please behave, bete? Every time you unmute yourself, and others also. So that is second form of the verb. V2 means second form of the verb. So the rules for the simple past or the past and definite tenses, that we have the subject first, and then we have verb की second form, and then we have the object. Now the next thing is कि where do we use the simple past tense? हमने किन sentences या किन actions को express करने के लिए simple past tense use करना है? बेटा please be attentive. Okay, so simple past tense is used to express an action that took place in the past time and is over now. ऐसा कोई action जो past में पहले हुआ था और वो खत्म हो चुका है, right? जैसे I went to market yesterday. मैं कल मार्केट गई थी, तो वो जो मेरे मार्केट जाने का एक्शन था वो कल हुआ और कल खत्म हो गया, ठीक है? नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट. पास्ट हैबिट मीन्स, मैंने आपको बताया था हैबिट क्या होती है, जो चीज हमें आदत होती है, जिस चीज को हम आदत मीन्स कि उसे बार बार करते हैं. सो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमारी हैबिट पहले होंगी, राइट? हो सकता है वो अब हैबिट ना हो. फॉर एग्जाम्पल, कैन एनीबडी गिव मी एन एग्जाम्पल फॉर दिस इन अ सेंटेंस इन द चैट बॉक्स? पास्ट हैबिट का एग्जाम्पल दे सकता है कोई? I hope some of you are trying to type. Okay, we can't wait. I fly kite. I fly kite is simple present tense. मैं kite fly करता हूँ. भाविक. She went to. I have met my brother. This is perfect tense. Always cries. She always cried. अगर आप लिख रहे हैं she always cries, तो उसका मतलब होता है वो हमेशा रोती है. That will be present. ठीक है, बट आप किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की. सो शी ऑलवेज क्राइड अगर आप लिखते हैं देन इट वुड बी फाइन. शी यूजुअली क्राइड एवरी मॉर्निंग. वो यूजुअली हर मॉर्निंग रोती थी, ठीक है? सो इट इज कि जो पहले उसकी हैबिट थी. तो अगेन इसमें ध्यान यही रखना है कि पास्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी है, राइट? ओके, नाउ स्टॉप टाइपिंग एंड लेट अस मूव फर्दर. यू कैन सी अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन. नाउ व्हाट यू हैव टू टेल, आपने स्क्रीन पे जो पिक्चर है उसको देख के एक्शन बताना है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन अ सेंटेंस. इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और पूरे सेंटेंस में एक एक्शन वर्ड अकेला नहीं लिखना है. क्विकली यू कैन से दैट दिस इज अ टीचर. टीचर समझ सकते हैं, से गर्ल समझ सकते हैं, वट एवर यू वांट टू गिव द नेम. The is reading, she is reading. No, I said simple present tense. बेटे simple present tense. You all are using the continuous tense. ing नहीं होती है, ing continuous में आती है. The teacher teaches us daily. Very good, excellent, Girisha. Okay. Again, teaching, talking, these all are the continuous tenses. आप continuous tense use कर रहे हैं. मैंने आपको बोला है simple present tense use करना है. Do you remember what is simple present tense? Subject plus verb की first form. यस, अब टीचर के साथ es या s आएगा बिकॉज टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर है. शी रीड्स अ बुक. ओके ओके. द गर्ल इज टॉक्स. इज कैसे आ गया? इज नहीं आएगा ना प्रियंका. इज एम आर हमेशा ing के साथ आते हैं.
ING तो हम यूज ही नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिन्यूअस टेंस। जपनीत बेटे ट्राई करो इस पिक्चर को देख के गर्ल क्या कर रही है, इसके एक्शन को ट्राई करो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना। अपने पहले सबसे पहले रूल याद करते हैं। गुरसिमर बेटा यू टेक योर ब्रेकफास्ट फर्स्ट एंड देन यू अटेंड द क्लास प्लीज। You can switch off the camera and leave the class for 10 minutes. And when you will be finished with your breakfast, then you can rejoin. She gives the answer. Very good. So basically मैंने आपको यहाँ बोला था कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। सबसे पहले जो भी टेंस यूज करना है उसके पहले आप स्ट्रक्चर याद करो, उसका रूल याद करो। टीचर इज टीचर्स, इज तो आता ही नहीं है कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इज एम आर तो आता ही नहीं है। दे आर ऑलवेज यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। ओके, now look at the next picture and again you have to do the same thing. Yes, the girl talks to her. Okay, please stop typing and now look at this. Look at this picture and tell me in simple present tense what is this what is this boy doing? I mean doing में फिर again continuous आ जाएगा, but you have to simply look at the picture and the boy reads book. Very good, excellent. The boy reads, yes, reads. Very good. Boy is playing, is smiling. ing. No, बेटे continuous नहीं यूज करना है। ing means continuous. आपने यहाँ simple present tense यूज करना है। The boy reads. Boy thinks. Okay. The boy smiles. Very good. Okay, fine. Some of you, the boy lie on the floor. He lies on the floor. ठीक है? Okay, now what you have to do, look at the next picture and listen to the instructions for the next picture. आपने next picture को देख के क्या करना है? Stop typing. Now, अब इस picture को आपने express करना है using simple past tense. Expression मैंने verb भी दे दिया आपको, कौन सा verb use करना है, cry verb use करना है। Past tense का पहले rules recall करो, अभी बताया मैंने आपको। Subject plus V2 plus object. वेरी गुड। सो क्राई का सेकेंड फॉर्म होता है क्राइड। एन्स बॉय हैज क्राइड नहीं बेटा, हैज हैव हैड परफेक्ट टेंसेस में आते हैं, अभी हम सिंपल टेंस करें। वेरी गुड। द बॉय क्राइड, सो द आंसर इज द बॉय क्राइड और ही क्राइड। वेरी गुड, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज किया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज किया, ठीक है। तो इतना भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, ही क्राइड या द बॉय क्राइड। वेरी गुड। स्टॉप टाइपिंग एंड लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। Stop typing, bete. I'm waiting for you to stop. Okay, now look at this picture. And now again, आपने इस picture को simple past tense में express करना है. So I can again give you a hint. Smile word use कर सकते हैं आप, laugh word use कर सकते हैं as the verb. No, the girls are dressed. No, bete, no, it is not. The girls smiled. Very good. Very good. The girls smiled. The girls laughed. Very good. R नहीं आएगा बेटा, never. Is MR सिर्फ ING के साथ आने हैं और ING हमेशा continuous में आता है। All right. Okay. Not stop typing. Let us move further. Now look at this. And the verb that you have to use is exercise. The verb that you have to use is exercise. Again, simple past tense में लिखना है। Simple past tense में they exercised. Very good, Japnoor. So you can use a pronoun or you can use a noun. He exercised. How can you write he, Ajad? Bete, you can see there are 4 persons in the picture. All the girls and boys do exercise. Do exercise में exercise noun आ रहा है. The adults exercised. Yes, people exercised. They exercised. People is exercised. Again is. बेटे please remember is MR was were ING के साथ आने हैं. All right. So now I have got the answer. They exercised. All right. And I think this is the last picture. Now quickly write down for this. I have again written the word here. Which action word you have to use. Use this word and write down the sentence in the simple past tense. They danced. Yes. Okay. Now this is they is a pronoun here. अगर हमने pronoun की जगह कोई noun use करके इस sentence को लिखना है तो हम क्या से लिख? Yes, very good. The couple danced. Very nice. Both
both danced. Okay. अब इसे प्रोनाउन, ये दे जो यूज कर रहे हो आप, ये प्रोनाउन आ रहा है, अब इसे किसी नाउन को नाउन यूज करके लिखिए. यूज अ नाउन फॉर द सब्जेक्ट. दे इज द प्रोनाउन ना. कपल है, हाँ जी कपल आ गया. ओके. कैन देयर एनी अदर, कैन देयर बी एनी अदर नाउन. डे की जगह ही एंड शी डांस्ड. द बॉय एंड द गर्ल डांस्ड. ही एंड शी तो फिर प्रोनाउन ही हो गए. द बॉय एंड द गर्ल डांस्ड. ऑलराइट. ओके बेटा, स्टॉप टाइपिंग एंड लेट अस मूव फर्दर. I'm waiting for you to stop. ओके. सो अब आपको क्लियर होगा कि सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में क्या डिफरेंस है. जब आपने सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस किए था तब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, और जब पास्ट में लिखने के लिए मैंने आपको कहा देन यू यूज द वर्ब की सेकंड फॉर्म. इज इट क्लियर दिस मच? इज दिस क्लियर जपनीत? इज इट क्लियर बेटे? I think the video is still okay. Let us move further. We will talk about the past continuous tense now. Continuous, अब आया है हमारा continuous word. So continuous जहाँ पे होता है वहाँ पे verb के साथ क्या लगना है? Quickly write in the chat box. Whenever we have the word continuous, तब verb के साथ क्या लगाना है हमने? ing. Very good. Continuous जहाँ पे भी आएगा वहाँ verb के साथ ing आता है. और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या याद रखना था हमने कि ing कभी भी अकेले नहीं आता है. इट नीड्स द हेल्प ऑफ अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? ओके चलो पास्ट में बताओ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है. वैसे एवरीथिंग इज रिटन ऑन द स्क्रीन. पास्ट में व्हेनेवर विल यूज वर्ब के साथ आईएनजी, सो व्हाट हेल्पिंग वर्ब विल वी यूज? गुरसिमर, व्हाट्स गोइंग ऑन बेटे? व्हाट्स गोइंग ऑन? अभी मुझे आंसर नहीं आया. हेल्पिंग वर्ब आई एम आस्किंग यू, आईएनजी के साथ कौन सा लगना है? पास्ट में लगता है was and were. You can see on the screen. So हमारा रूल्स क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के? ism और is written in present. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ism आते हैं, पास्ट में they become was and were. ठीक है. Okay, now look at the screen. So the rules for the past, who's this? Better mute yourself. So the rules for the past continuous tenses, first we have the subject. Stop writing, beta. Stop writing and listen to me now. First we have the subject and then we have was or were, depending. Singular के साथ was use होगा and plural के साथ were. And then we have verb की first form plus ing. Who is this, beta? Mute yourself. You're disturbing. So verb की first form के साथ ing and then the object. So another important thing जो आपको मैंने last time भी समझाई थी कि whenever we are using ing form of the verb, वो हमेशा किसके साथ यूज होता है? verb की first form के साथ. ठीक है. अब ये नहीं सोचना कि past tense है तो verb की second form के साथ ing लगा देना. No, ing हमेशा verb की first form के साथ ही आता है, कोई भी tense हो, चाहे present है, चाहे past है, चाहे future है. ing will never be used with any other form of the verb. सिर्फ verb की first form के साथ ही ing आता है. Is it clear? Okay. Now we'll take some example. Okay. Who was this beta? Okay. Now we'll see कि past continuous tense हम use कहाँ करते हैं, कौन से actions के लिए हमने past continuous tense use करना है. So look at the screen. The first one is to express an action begun and continuing in the past time. कोई ऐसा action जो past में पहले शुरू हुआ था, शुरू भी हुआ तब और वहां पे चलता रहा. जैसे she was dancing, वो डांस कर रही थी. यहाँ पे क्या आया? कॉन्टिन्यूस है ना, तो रहा वर्ड आना है ना कॉन्टिन्यूस में. प्रेजेंट में क्या आना था? रहा है, रहे हैं. पास्ट में क्या हो जाता है? रहा था, रहे थे. ठीक है. मीन्स वो काम वो कर रहे थे, कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन वो पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा. राइट. सो दे वर टॉकिंग. नाउ यू लुक एट द स्क्रीन कि वो दे वर टॉकिंग मीन्स वो बातें कर रहे थे. ठीक है. सो पास्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंसेस किससे एंड होते हैं? रहा था, रहे थे. क्लियर है? ओके. नाउ नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस दैट वन एक्टिविटी वाज कंटिन्यूइंग व्हेन अनदर टुक प्लेस. कई बार पास्ट में दो एक्टिविटीज हुई होंगी सपोज, तो एक एक्टिविटी हुई जो पूरी हो गई और दूसरी एक्टिविटी उस टाइम पे चल रही थी. जैसे व्हेन माय मदर केम. अब यहाँ पे दो एक्शन वर्ड्स हैं, ध्यान से सुनना इसको. व्हेन माय मदर केम आई वाज रीडिंग अ बुक. अब इस सेंटेंस में दो एक्शंस हो रहे हैं.
एक एक्शन क्या हुआ, जब मेरी मम्मा आई, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। जब मम्मा आई तो वहां पे उस टाइम एक और एक्शन चल रहा था, उस टाइम पे चल रहा था, और वो दूसरा एक्शन क्या चल रहा था कि आई वॉज रीडिंग अ बुक। सो यहाँ पे दो एक्शन हुए, एक एक्शन तो आपने सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है हमेशा, और दूसरा एक्शन अगर उस टाइम पे वो काम चल रहा था ना, उसको आपने किस में लिखना है, कॉन्टिन्यूस में। जैसे आई वॉज टीचिंग व्हेन ही केम इन, तो जब वो आया, एक एक्शन तो सिंपल पास्ट में हो गया, जब वो आया तब क्या काम चल रहा था उस टाइम पे, मैं पढ़ा रही थी। ओके, सो कॉन्टिन्यूस टेंस वहां भी यूज होता है जब पास्ट में एक एक्शन हो गया और दूसरा उसके होने के टाइम पे चल रहा था, एक पूरा हो गया और एक चल रहा था, वहां पे हम कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लुक एट द स्क्रीन. We'll read the rules for the past continuous tense. So the rules for the past continuous, again I'm reading, are subject plus was or were plus verb की first form के साथ ing and then the object. Now you can see a few examples on the screen. The same examples I've given in your audio also today that I've sent. She was reading a book. वो book पढ़ रही थी, ठीक है. I was cooking food. मैं खाना बना रही थी, ठीक है, वो काम चल रहा था, पहले चल रहा था अपने. दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स, वो गाना गा रहे थे, ठीक है. ओके, अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करना होगा तो क्या हो जाएगा, शी इज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही है. आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही हूँ. ओके, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, वो गाना गा रहे हैं. सो रहे वर्ड तो आता ही है कॉन्टिन्यूस में, सिर्फ है का था बन जाता है, ठीक है. प्रेजेंट में है वर्ड यूज होता है और पास्ट में था वर्ड यूज हो जाता है. इज इट क्लियर? और इसके हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे, इज या मार की जगह वॉज वर आएगा. ओके, नाउ आई हैव दिस शॉर्ट पैसेज फॉर यू. I hope this is visible to all of you. If it is not visible, you can zoom in. I'll quickly read. आपकी eyes paragraph पे होनी चाहिए. I'll be reading. आपके सिर्फ eyes चलेंगी साथ में. Right now, be attentive and look at the screen. Hello, my name is Sheena. I am at the Central Park with my family. We all have come to the park on a picnic. The sun is shining brightly in the sky. सूरज जो है वो चमक रहा है आ गया, तो इसीलिए वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसीलिए हमने उसके साथ क्या लगाया, द सन इज शाइनिंग, आईएनजी वाला फॉर्म लगाया, ठीक है. नाउ माय फादर इज ड्रिंकिंग टी, लुक एट द पिक्चर, द मैन इज ड्रिंकिंग टी ना. सो अगेन ये क्या है, कॉन्टिन्यू हो रहा है, उसका फादर जो है वो टी पी रहे हैं, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज My mother is giving food to my father. Mother क्या कर रही है, रही है आ गया, मतलब वो काम अभी चल रहा है. ओके, सो मेरी मम्मा मेरे पापा को खाना दे रही हैं. नेक्स्ट, my brother is running in the park. मेरा ब्रदर क्या कर रहा है, मेरा ब्रदर पार्क में भाग रहा है. My dog is also running with my brother. मेरा डॉग क्या कर रहा है, डॉग भी ब्रदर के साथ भाग रहा है. I am picking flowers. मैं क्या कर रही हूँ, मैं फ्लावर्स पिक कर रही हूँ, मीन्स तोड़ रही हूँ. ओके, वैसे प्लकिंग होता है एग्जैक्ट वर्ड, पिकिंग मीन्स इकट्ठा कर रही हूँ. सो वी आर एंजॉयिंग अ लॉट इन द पार्क. और हम सब क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं. सो अब आप देखेंगे जो पिंक कलर में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ब्स जो हैं वो कौन से टेंस में है, क्विकली राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. The words that are written in the pink or the say red में जितने भी words लिखे हुए हैं, ये कौन से tense में लिखे गए हैं. Manrekha Chauhan has written present. Ruchit has also written present. Japnoor has written present continuous. Manobal has written present. Okay. Okay. Fine. Sorry. Okay. Okay, बेटा stop writing. Now I have got 3 answers. एक आंसर आया है present tense, एक आया है present continuous tense, और एक आंसर है continuous tense. Now tell me, if I write down only present tense, अगर मैं ऐसे प्रेजेंट टेंस लिख देती हूँ तो बेटा प्रेजेंट टेंस में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आता है, प्रेजेंट टेंस में पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी आता है और परफेक्ट भी आता है. सो दैट वुड बी रॉन्ग, ठीक है. आपको एग्जैक्ट बताना है. अकेला कॉन्टिन्यूअस लिख दिया आपने, निधिमा हैज रिटन अकेला कॉन्टिन्यूअस वर्ड. सो कॉन्टिन्यूअस जो होता है
कॉन्टिन्यूस कैन बी पास्ट कॉन्टिन्यूस ऑल्सो, इट कैन बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ऑल्सो। तो आपने अकेला कॉन्टिन्यूस लिख दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा कॉन्टिन्यूस है? सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो योर आंसर मस्ट बी प्रॉपर, पूरा आंसर लिखना है। इट इज टू बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये इज एम आर आ रहा है, इज एम आर प्रेजेंट में आते हैं। ऑलराइट, इज दिस मच क्लियर? सो व्हेनेवर यू आर asked to write down the tense ध्यान से लिखना है, पूरा वर्ड लिखना है। सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अकेला प्रेजेंट वर्ड wrong हो जाएगा आपका, अकेला continuous word would be wrong, right? Okay, now there are a few questions here. If you can see, first question का आंसर मुझे जल्दी से देंगे। I will read the question for you. What is Sheena doing? Quickly. What is Sheena doing? जल्दी से ढूंढो पैसेज में से क्या आंसर है इसका। शीना ने लिखा ना पैसेज यहाँ। So what is she doing? उसने अपने बारे में क्या लिखा है, मैं क्या कर रही हूँ? Yes. Am के क्यों आया is? I'm asking what is Sheena doing? Sheena is picking flowers. Very good. So she is picking flowers या Sheena is picking flowers. Both are correct. Okay. So इसका हिंदी में मतलब बनता है कि शीना जो है वो flowers pick कर रही है. Okay. Next question is what is shining in the sky? Full complete answer चाहिए बेटा मुझे. I want the answer in the sentence form. What is shining in the sky? The sun is shining in the sky. Very good. Next is, what is Sheena's father doing? Now write down for this only. What is shining में बेटा e we remove e. Shine में e आता है ना, तो वहाँ जब ing लगेगा तो e हट जाता है. Yes. What is Sheena's father doing? No, Ains, I want the complete sentence. He is drinking tea, or try not to use pronouns. ट्राई करते हैं कि प्रोनाउंस नहीं यूज करें. शीना's father is drinking tea. Very good. So there are a few questions like these. There are 6 questions. Now look at the end. End वाली line read करेंगे. Stop writing and let us read the last line that is given at the end. Words like shining, drinking, giving, running, picking, and enjoying tell us about actions happening now. So ये जो सारे words use हुए हैं, ये सारे क्या बता रहे हैं? ऐसे एक्शंस के बारे में बता रहे हैं जो अभी हो रहे हैं, क्योंकि सब में ing आया है, तो ये सारे एक्शंस अभी हो रहे हैं. सो ये जो पैराग्राफ था ये कौन से टेंस में था? पूरा पैराग्राफ हमारा पूरा नहीं, बट मेनी लाइंस वर रिटन इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और अच्छा, कैन यू टेल मी ये जो पहले वाले सेंटेंसेस है, माय नेम इज शीना, आई एम एट सेंट्रल पार्क विद माय फैमिली, we all have come to the okay first 2 lines, my name is Sheena, I am at Central Park with my family, ये कौन से टेंस में है? write down the tense. first 2 sentences read कीजिए और उसका टेंस लिखेंगे. first 2 sentences कौन से टेंस में लिखे हुए हैं यहाँ पे? I have got one answer. yes, देखो जरा वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है. very good. So the first 2 sentences are in simple present tense. Now third sentence, stop writing and listen to this. We all have come to the park on a picnic. इसका tense बताएंगे मुझे. We all have come to the park on a picnic. Okay, I have started getting the answers for this. We all have come. Has, have, had कहाँ आते हैं? Has, have. Very good. Perfect tenses में आते हैं. Very good. Excellent. Okay. और come, came, come. Come जो है again come की third form है. V3 है यहाँ पे. So this is present perfect tense. Excellent. Now let us move further quickly. Okay. Now you can again see a picture here. I'll again zoom in. Okay. Now nicely अच्छे से जरा carefully look at the picture. Now this picture is of a street. एक एरिया की पिक्चर है जहाँ पे अलग अलग चीजें आपको एक्शंस नजर आ रहे हैं. ठीक है. सो कैरेक्टर्स के नाम भी आपको दिए हुए हैं. हर कैरेक्टर के की पिक्चर के साथ उसका नाम बताया हुआ है. नाउ लिसन टू मी. पहले आप ध्यान से सुनेंगे क्या करना है यहाँ पे. विल रीड दिस. द एक्सीडेंट हैपेंड यस्टरडे. ये एक्सीडेंट कल हुआ था. ये एक्सीडेंट हुआ ना या 2 cars हिट हुई हुई हैं. Write what the people were doing at the time of the accident. अब आपने ये बताना है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो ये जो डिफरेंट लोग हैं वो उस टाइम पे क्या कर रहे थे. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है.
जॉय के बारे में लिखा है, तो उस टाइम पे जॉय क्या कर रहा था। अब ये कौन से, पहले मुझे बताइए कि ये जो सेंटेंसेस हम लिखने वाले हैं ये कौन से टेंस में लिखेंगे। उस टाइम पे यानी कि कल एक्शन क्या हो रहा था, सो व्हाट वुड बी द टेंस। पास तो होगा डेफिनेटली, पास तो है ही है। आई वांट द कंप्लीट आंसर फॉर दिस। ओके बेटा, पास्ट में पास्ट सिंपल पास्ट भी आता है, कॉन्टिन्यूस भी आता है, परफेक्ट भी आता है। सिंपल पास्ट, व्हाई गिरीशा, व्हाई सिंपल पास्ट बेटे? अनम्यूट योरसेल्फ गिरीशा, टेल मी व्हाई सिंपल पास्ट। गिरीशा, व्हाई सिंपल पास्ट बेटे? मैम यस, व्हाई सिंपल पास्ट बच्चे? मैम बिकॉज वो मैम कल हुआ था। हाँ कल हुआ था, लेकिन अब क्वेश्चन जरा ध्यान से सोचो। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब ये सब लोग क्या कर रहे थे आ रहा है। उस टाइम पे ये लोग क्या कर रहे थे, कॉन्टिन्यूस देख पास्ट ले। कॉन्टिन्यूस। हाँ, वो जो भी कर रहे थे, अलग अलग लोग अलग अलग एक्शंस कर रहे हैं, लेकिन कर रहे थे क्वेश्चन है हमारा। रहे थे मतलब जहां रहा था, रहे थे आ रहा होता है, वहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूस आता है। ऑलराइट, म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी। सो हम फर्स्ट में उन्होंने बताया जॉय क्या कर रहा था उस टाइम पे। जॉय वॉज ईटिंग एन आइसक्रीम। अगर आप पिक्चर में देखोगे तो आपको ध्यान से नजर आएगा कि जॉय आइसक्रीम खा रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज, नाउ लिसन टू मी, व्हाट वाज पीटर डूइंग एट दैट टाइम। व्हाट वाज पीटर डूइंग? पीटर के बारे में सेंटेंस लिखना आपने। वेरी गुड। पीटर इज साइकिलिंग, पीटर इज राइडिंग ऑन द साइकिल, पीटर वॉज साइकिलिंग। यस, इसका आंसर प्लीज क्विकली देंगे मुझे। व्हाट वाज पीटर डूइंग? पीटर इज राइडिंग। वेरी गुड, पीटर वॉज। ओके, okay, very good. Peter was cycling, was going to tuition. Wow, very good. Fine. So in the beginning, I saw, okay, Bhargavi, Bhargav, sorry, Bhargav, unmute yourself quickly. Bhargav, quickly unmute yourself. मैम यस। बेटा, why Peter is and why not Peter was? Peter is riding क्यों बोला आपने, Peter was riding क्यों नहीं? दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा बताएंगे मुझे जल्दी से भार्गव। मैम आई कैन टेल। नो, नॉट एट ऑल। इस तरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी आपसे। भार्गव बताइए बेटे। वॉज आना है यहाँ पे, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करें। यहाँ पे जितने भी एक्शंस हमने बताने हैं सब पास्ट कॉन्टिन्यूस में बताने हैं। ये एक्सीडेंट कल हुआ था, तो ये एक्शंस कल हो रहे थे, हो रहे हैं नहीं, हो रहे थे। So we don't have to use is MR, we will be using was and were here. Is that clear to everyone? Okay, now let us move further. मैम And the last one, yes bete, who's this? मैम मैम मेरे को जो आपने करवाया सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैम मेरे को उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैम समझ नहीं लग रहा। बेटा आप ना, आज जो मैंने ऑडियो भेजा है ना अभी, आपने श्रीषा आई थिंक वो सुना नहीं होगा, है ना? उसको आज पहले आप, मैम हाँ मैंने सुना ऑब्वियसली नहीं सुना। मैम प्लीज रिमूव द चाइल्ड नीतू कुमारी। ओके ओके मैम, ओके। यस बेटा, ये आप पहले आज ऑडियो जो मैंने भेजा ना वो सुनिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसके ऊपर से एटलीस्ट 3-4 टाइम्स सुनिए। नहीं होगा श्रीषा, देन यू कैन आस्क मी क्विकली। लेट अस मूव टू द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मींस एक्शन कंप्लीट हो चुका था, ठीक है? वहां पे हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। और अगेन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आते हैं, हैड। पास्ट में सिर्फ हैड ही आता है। प्रेजेंट में क्या आना था, हैज और हैव, दो की ऑप्शन थी हमारे पास, लेकिन पास्ट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें सिर्फ हैड यूज करना है। एंड अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंसेस ऑलवेज टेक वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब ये यूज कहाँ होते हैं, विल डिस्कस दैट। दिस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन पास्ट मोमेंट। एक आपको टाइम दिया गया था पहले पास्ट में, उस टाइम से पहले जो काम हो जाता है उसमें हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, द फंक्शन हैड एंडेड बाय 6 o'clock। सो हमारे पास एक टाइम था 6 o'clock का, और जो हमारा फंक्शन जो था
मिश्रे मैम। श्रेय मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम की वीडियो भी पॉज हो गई है। हाँ जी मैम, यस आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम वाज देयर। लेट्स वेट, मे बी शी इज कमिंग बैक। या श्योर। Ma'am, you are muted. Ma'am, am I audible? Yes मैम। yes Am I audible, ma'am? yes ma'am, yes now you are audible. Ma'am, Ma'am, am I audible now? Yes ma'am, Shrey ma'am, you are audible. I think network problem is there, Anu ma'am. यस Prabjot ma'am? Yes ma'am, yes you are audible ma'am. Shrey ma'am, you are audible. Am I audible? Actually, I Yes lost yes connection from the laptop, so yes I'm on ma'am. mobile again. Yes you are audible ma'am, you are audible. Okay, fine. So बेटा this was कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज करना होता है. So अगर हमें कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, उस टाइम से पहले हमारा जो है एक्शन कंप्लीट हो जाता है, देन वी यूज द परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट. सेकंड केस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, हम कहाँ यूज करते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड कि अगर हमारे पास्ट में दो एक्शंस हुए, राइट, दो एक्शंस हुए हैं और उनमें से जो एक्शन पहले हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, और जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन. अब यहाँ दो एक्शन थे, एक तो ट्रेन के जाने का एक्शन और दूसरा एक्शन था हमारा ट्रेन के चले जाने का, ट्रेन के चले जाने का एक्शन, और दूसरा हमारा स्टेशन पहुंचने का एक्शन, राइट. सो अब यहाँ पे पहले क्या हुआ, मैं कह रही हूँ कि ट्रेन हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले जा चुकी थी. तो पहले क्या हुआ, पहले ट्रेन गई है हमारी. ओके. Excuse me शेयर मैम, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? नहीं मैम, एक्चुअली आई हैव लॉस्ट द कनेक्शन फ्रॉम माय लैपटॉप, सो ओके मैम, एक्चुअली मैसेज आया था बच्चे का कि स्क्रीन विजिबल नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम आई आस्किंग. स्टॉप शेयरिंग बिकॉज़ आई एम द फोन ऑन. ओके फाइन मैम, फाइन. या सो यहाँ पे पहले एक्शन क्या हुआ, पहले ट्रेन चली गई. उसका दूसरा एक्शन क्या हुआ, हम स्टेशन पे पहुंचे. सो जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम किस में लिखते हैं, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसको हम किस में लिखते हैं, सिंपल पास्ट में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड. यानी कि अब यहाँ पे दो चीजें हुई, एक तो पेशेंट की डेथ हुई है, दूसरा डॉक्टर आया था. लेकिन पहले क्या हुआ, पहले पेशेंट की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद डॉक्टर आया. तो जो एक्शन पहले हुआ, पेशेंट की डेथ का जो एक्शन है उसको हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में. सो द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड. अराइव्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस. Okay, so beta, I have to leave because I have to go to school now, and I have the slides. If anybody wants, I can send you. We had some more slides, but because we don't have time, we can't continue. Anu ma'am, you can take over the class now. If anybody has any doubt, beta, you can WhatsApp me later on. All right? Thank you. Anu ma'am, please you continue now. यस मैम. Okay. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. So let me share my screen. But you no need to unmute yourself. And you know the rules. No sharing of the screen. No unmuting yourself. yes, ma'am. Still you are unmuting yourself. Let me share my screen. Okay, I hope my screen is visible to everyone. So today I have sent you the recapitulation video of chapter 2. Okay, तो आज हम chapter 2 ही रिवाइज करेंगे. उसके साथ मैंने आपको एक वर्कशीट भी सेंड की है, छोटी सी वर्कशीट है, ठीक है, वर्कशीट, बट इट इज टोटली बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, आई रियली होप आपने कुछ तो रिवाइज किया होगा क्लास में बैठने से पहले, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी पता चल जाएगी जब आप आंसर्स मुझे दोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, जो भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगी. ठीक है,
The questions which I have asked you in the worksheet, I'm not going to repeat those questions here. यहाँ पे हम दूसरे concepts discuss कर रहे हैं जो worksheet में जिसके related questions नहीं थे. Okay, so let's begin without wasting any time. So first question is name the type of tooth. आपने types of tooth पढ़े हैं, उनकी shapes बनाई है, diagram बनाए हैं, and you have to look at the picture and identify that which type of tooth is this and name that type of tooth. Yes, the question is very clear to all and I'm getting the answers and everyone is writing the same answer. Ma'am, If you know the answer, picture is not visible. बच्चे मेरी स्क्रीन को पिन कर लो, जहां पे आपको एरो दिख रहा है ना मेरे नेम के आगे, मेरे आपको 3 नेम्स दिख रहे होंगे, उसमें से एक को आप पिन करो जहां पे आपको एरो दिख रहा है. मैम आपकी स्क्रीन तो विजिबल है मैम, पर जो आपने कहा ना मैम वो आप इमेज दिखाओगे, मैम वो इमेज नहीं दिख रही. जूम कर लो फिर आप पिक्चर को. आप अपने फोन से स्क्रीन को पकड़ के जूम कर सकते हैं बिकॉज इट इज विजिबल ऑन माय फोन. I'm sharing it from laptop and I can see this picture from my phone. और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्रभजोत मैम इज हियर, शी विल टेल मी. मुझे टूथ की पिक्चर नहीं दिख रही है. आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? मैम जो आपने लिखा हुआ है क्लास 4 साइंस एक्टिविटी. एएन एक बार लेफ्ट कर जाओ मीटिंग और दोबारा ज्वाइन कर लो लीव करके. यस, आपके नेटवर्क इशू की वजह से आपको नेक्स्ट स्लाइड नहीं शो हो रही है. Join again. Yes, I can see the most of the students have written canine tooth, but only 2 to 3 students have written incisor. Okay, let me reveal the answer and spellings. Ashok Kumar, the student. Neha, spelling, check your spellings. It is a canine tooth. Canine tooth की क्या पहचान, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? इट हैज पॉइंटेड एंड. इफ यू कैन सी माय कर्सर, इसका एंड देखो, ये पॉइंटेड एंड है बिकॉज के 9 टीथ आर यूज्ड टू टियर द फ्लैश. ठीक है, जो ह्यूमंस होते हैं ये ओमनीवोर होते हैं. ठीक है, एक हार्बीवोर होता है, एक कार्निवोर होता है, एक ओमनीवोर होता है. आई होप आपने ईवीएस में पढ़ा होगा 3rd तक. ओमनीवोर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल फ्लैश भी खाते हैं. Herbivores are only those who eat plant products. Carnivores are only those who eat flesh. ठीक है, जो स्किन खाते हैं. ठीक है, तो स्किन को टीयर करने के लिए they need pointed ended tooth. ठीक है, बट ह्यूमंस जो कि ओमनीवोर है, तो ओमनीवोर्स में उनको क्योंकि टीयर करना पड़ेगा फ्लैश. ठीक है, कुछ लोग खाते हैं ना नॉनवेज, तो उसके लिए ये वाले टीथ वो यूज करते हैं. इसका पॉइंटेड एंड होता है विच हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश. ओके, तो आपने उनकी सबकी आपने ये शेप देख के ही आप पहचान सकते हो. रूट तो सबकी सिमिलर हो सकती है, रूट नहीं आप देखोगे बिल्कुल भी, आप ये पॉइंटेड एंड देखोगे. नेक्स्ट पिक्चर इज दिस ऑन योर स्क्रीन्स. लुक एट दिस पिक्चर वेरी केयरफुली, इट मे बी कंफ्यूजिंग. आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसको देखकर. बच्चे ये टूथ का पिक्चर है, बोन तो बिल्कुल भी नहीं है. Okay, molar, premolar, molar, premolar. I told you that this may be confusing to you. Actually, it is not your fault क्योंकि molars and premolar काफी similar looking है. It is completely okay. अगर कुछ बच्चे confused भी हैं, that's okay. Premolar. That's very bad. No need to unmute yourself and speak the answer. Yes, let me reveal the answer. These are premolar. The only little difference between premolars and molars is that molars are little bit broader than the premolars. Okay? मोलर का जो सरफेस है वो प्रीमोलर से काफी ब्रॉड होता है. आपने ब्रॉडनेस चेक करनी है, कौन सा ज्यादा बड़ा दिख रहा है. कि प्रीमोलर्स मोलर से थोड़े कम ब्रॉड होते हैं.
Next picture is this. This is very simple. You can guess easily. And what is the function of premolar? हमने canine का function discuss किया, premolar का भी करेंगे. इसके रिलेटेड मैंने आपको वर्कशीट में क्वेश्चन डाले हुए हैं फंक्शन से रिलेटेड. प्रीमोलर्स हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड. कोई भी आप जैसे कोई भी सॉलिड फूड आइटम अपने माउथ में रखते हैं, जैसे पीनट्स रख लिए, कोई भी नट्स रख लिए, उसको पहले छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ना जरूरी है. दैट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग इज डन बाय प्रीमोलर्स. आप हमेशा ग्राइंडिंग प्रीमोलर से करते हो. मैम जो आपने पिछला करवाया था मैम, उसका मोलर्स आंसर ठीक है कि नहीं? Premolar. And I can see that most of the students are writing wrong answer for this. I thought you will find it easy, but ये भी आपको confusing लग रहा है. बच्चे आप इसका ये देखो, ये एरिया देखना, रूट आपने नहीं देखनी, ओनली अपर एरिया देखना जो क्राउन ऑफ द टूथ होता है. ओके ये आपको कैसी नजर आ रही है? आपको मोलर जैसी नजर आ रही है? बिकॉज दिस इज नॉट मोलर, दिस इज इंसीजर. इंसीजर्स कैसे होते हैं? इनका जो सरफेस होता है बिल्कुल फ्लैट. आपका जो फ्रंट टीथ है जो बिल्कुल सामने नजर आते हैं, उसको टच करके देखो, टच करके देखो उसको. आपको क्या दिख रहा है? वो फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है. वो तो ब्रॉड है ही नहीं. आपके जो पीछे वाले टीथ हैं, बहुत पीछे पीछे होते हैं, वो ब्रॉड होते हैं. आप मिरर में देखो, ठीक है? तो उनका वर्क कुछ हो रहा है, इंसीजर का वर्क कुछ और है. दैट्स व्हाई देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है? इंसीजर किस लिए यूज होता है? हमें कोई फूड आइटम को बाइट करना है, होल्ड करना है. यहाँ पे जैसे आप बनाना को बाइट कर रहे हो, ठीक है, फूड को होल्ड करने के लिए, ये कट करने के लिए. बनाना आपने मुंह में रखा, फिर आपने इसको कट किया, ठीक है? कट करने के लिए, बाइटिंग के लिए, होल्डिंग के लिए हम फ्रंट टीथ यूज करते हैं. ओके, सो फ्रंट टीथ आर इंसीजर. आप देखो इसका बिल्कुल फ्लैट है ऊपर वाला सरफेस. सो फ्लैट सरफेस जिसका है वो इंसीजर है. नेक्स्ट पिक्चर इज दिस. अब एक ही पिक्चर आएगी और एक ही आंसर आ गया, ये तो आप इजीली गेस कर लोगे. Yes, no doubt in this. This is a molar. Now, what is the function of molar? जो भी आपने फूड कट कर लिया, बाइट कर लिया, टीयर कर लिया या फिर ग्राइंड कर लिया, उसकी क्रशिंग जरूरी है. उसको फर्दर बहुत स्मॉलर पीसेस में, बिल्कुल फाइन पीसेस में, पेस्ट में बदलना जरूरी है स्वेलोइंग से पहले. तो वो वर्क क्रशिंग का कौन करता है? मोलर्स करते हैं. ठीक है? एंड ऑल दीज प्रोसेसेस मैम ताकि वो मैम वो सेमी सॉलिड हो जाए मैम फूड, ताकि हम उसे अच्छी तरह डाइजेस्ट कर सके मैम. स्वेलो वो बिल्कुल पेस्ट ही बन जाता है, तभी हम उसको स्वेलो कर पाते हैं. सेमी सॉलिड भी नहीं होता, वो पेस्ट ही हो जाती है बिल्कुल. ओके, पेस्ट बन जाता है. सो ऑल दीज प्रोसेसेस इंक्लूडिंग बाइटिंग, कटिंग एंड क्रशिंग, ग्राइंडिंग, ये सबको कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं. एंड व्हाट इज दैट वर्ड कॉल्ड? If you know the answer, write in the chat box. All these processes are known as what? One word. Yes, Yajat has answered chewing. ठीक है? जो chewing हम word use कर रहे हैं, it includes all these processes: biting, cutting, holding, and grinding and crushing. Okay, so chewing is the answer. Okay, let's move to next activity. It is very interesting. आपको अच्छी भी लगेगी. Your teeth. Okay. अब इसमें करना क्या है? मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी. First, you all listen to me carefully. Okay. Do not write anything in the chat box. Okay. I'm going to show you some pictures on your screens. आपको पता है कि आपको आपकी टीथ की केयर कैसे करनी है. ठीक है? वो पिक्चर आपके लिए एक्चुअली में एक हिंट है, और उसको देखते हुए आपने आंसर अपना लिखना है कि ये पिक्चर कौन से ऐसे रूल के बारे में है जिससे आप अपने टीथ ब्रश योर टीथ ओके. केयरफुली. पिक्चर नहीं दिखाई है बच्चे, ये बस एक लोगो सा है, एक फ्रंट है. ओके,
मैंने अभी आपको कोई पिक्चर नहीं दिखाई है. स्टॉप राइटिंग योर आंसर्स. दिस इज द फर्स्ट पिक्चर and nobody will unmute themselves and speak the answer. Only write your answer in the chat box. Okay, everyone is writing brushing, brushing. That's very nice. But how many times you need to brush in a day? How many times? Yes. Niban Sharma has written twice a day. Can you tell me the time? What are the times when you can brush your teeth? Yes, ma'am. Morning and night. Okay. मॉर्निंग में कब? उठने के बाद. एंड नाइट में कब? सोने से पहले. ओके. सो ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. नेक्स्ट पिक्चर इज दिस. व्हाट इज दिस? जब आपके पास नेक्स्ट पिक्चर आ जाती है तो पीछे वाले क्वेश्चंस का आंसर देना बंद कर दिया करो. अभी भी कुछ स्टूडेंट्स मॉर्निंग नाइट लिख रहे हैं. व्हाट इज दिस पिक्चर इज अबाउट? Yes, I can see that students are writing flossing. That's correct. Flossing क्या होता है? एक थ्रेड लेते हैं, थ्रेड से अपने टीथ के बीच में उसको अलाउ करते हैं पास करने के लिए. और कुछ भी अगर बिल्कुल स्मॉलर फाइन फूड पार्टिकल वहां पे अगर फंसे हुए होते हैं तो वो बाहर निकल आते हैं. अगर देखो सिंपल कंसेप्ट है, फूड रहेगा तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे, एसिड आपके टीथ में होल बनाएगा और उससे कैविटी होगी. ओके, so it is very important to remove all the food particles from your teeth and your mouth. प्रॉपर ये पूरा माउथ हाइजीन है. So this process is called flossing. ठीक है, इसके आपको डेफिनेशन भी है, मैंने आपसे वर्कशीट में भी डेफिनेशन पूछी हुई है. नेक्स्ट पिक्चर इज दिस. ये पिक्चर देखिए, आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? डेंटिस्ट तो है, बट आपने रूल लिखना है. द रूल विच इज रिलेटेड टू द डेंटिस्ट. आपने पूरी लाइन लिखनी है, मुझे बस ये नहीं बताना कि ये डेंटिस्ट है. Yajat has written go to dentist once in a month. Do you go to dentist, Yajat, once in a month? Okay, Tanishka has written once in a week. इतनी जल्दी जल्दी जाते हो आप डेंटिस्ट के पास? Cleaning of teeth, visiting dentist after 6 months, once in a month, regularly. Okay. So on the weekly basis, it is too soon. ये बहुत ही जल्दी है वीक में एक बार जाना. वीक में एक बार तो हम अपना कोई रेगुलर चेकअप के लिए किसी डॉक्टर से भी नहीं मिलते हैं. ठीक है, अनलेस वी आर फीलिंग सिक, वी आर नॉट फीलिंग वेल. तो 1 मंथ भी इज वेरी नियर टाइम. तो एटलीस्ट 6 मंथ. ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो फंक्शन है ये इतना रिलायबल है. हम चेकअप के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जो आगे आने वाली है, जो डिवेल्प अभी हो रही है, अभी स्टार्ट हो रही है, उसको पकड़ा जा सके. ओके, सो वी शुड विजिट डेंटिस्ट वंस इन अ 6 मंथ्स रेगुलर चेकअप के लिए. ओके, व्हाट इज दिस पिक्चर अबाउट? नो आंसर्स? Tongue, yes, this is about tongue. Clean your tongue because same concept hold for the tongue. जो मैंने आपको कैविटी का concept बताया. Okay? अगर आपके टीथ में फूड रह जाता है तो आपकी टंग पे भी तो रह जाता है जब टंग वाइट सी हो जाती है. ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द टंग ऑल्सो बिकॉज बैक्टीरिया कैन ग्रो ऑन दैट ऑल्सो. Yes, cleaning tongue is very important. So clean your tongue.
एंड टंग की स्पेलिंग आप टोंग लिख रहे हो बच्चे, टोंग भी नहीं, कुछ और ही बना रहे हो. Spelling is very important. Okay, so next activity. We have 10 minutes. इस 10 minutes में हमें ये activity करनी है. This question is about structure of tooth. Structure of tooth आप बहुत बार कर चुके हो, आपने अपनी नोटबुक्स में भी बनाया हुआ है, लेबल किया हुआ है, मैंने आपको एग्जाम्स में भी दिया था PT1 के. So we are going to revise the labeling of structure of tooth. First question is this. Let me give you the hint. ये जो पार्ट है जो मैं आपको शो कर रही हूँ, दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. इट इज इवन हार्डर देन अ बोन. ये सबसे हार्ड पार्ट है हमारी बॉडी का. यस, सबने आइडेंटिफाई कर लिया है. दैट्स वेरी गुड. स्पेलिंग सबने बहुत ध्यान रखनी है स्पेलिंग लिखते हुए. Yes. This is enamel. Okay? Enamel बिल्कुल हमारी टूथ का बिल्कुल आउटर पार्ट होता है. ये बहुत हार्ड होता है. इसका खराब होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. बहुत 2% चांसेस है ये खराब हो जाए. और जब ये खराब हो जाता है, ये एज के साथ या फिर जब हम बिल्कुल केयर नहीं करते अपनी टूथ की, इस ये चीजों के रीजन की वजह से ना ये खराब हो जाता है. ठीक है, तो ये खराब हो गया तो इट मीन्स पूरा टूथ खराब हो गया, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता. सेकेंड इज दिस. स्पेलिंग अनम्यूट नहीं करना अपने आप को. आपने Excuse me, ma'am. Ma'am, Yes, can you send me the link of your school? I didn't get you. What are you saying? Ma'am, can you send me the ID of schools? Of Which schools ID in YouTube? YouTube ID बच्चे, it is SSDPS PHG e-content. Ma'am, can you send me my number? Okay, let me tell you, जो स्टूडेंट्स पल्प लिख रहे हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट. आई थिंक आप एक्चुअली ऐसे करते हो ना कि जो जैसे आपको बुक में गिवन है, आप बिल्कुल भी अपना माइंड यूज नहीं करते हो कि ये क्या हो सकता है, तो आप उसका एग्जैक्ट आंसर कर देते हो. चलो पल्प भी बिल्कुल ठीक है, पल्प भी ठीक है, बट मैंने यहाँ पे नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स आपसे पूछे थे. दैट्स ऑल्सो करेक्ट. पल्प इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने. ओके, बट आपने ये बताना है कि नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होती क्या है. नर्व्स क्या होती है? नर्व्स हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं. ये सेंसिटिविटी, देखो आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आप स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, एंड आप फील कर सकते हो टच को. ये सब हमारी ये जो नर्व्स है इनकी वजह से है. ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स का नेटवर्क है. ठीक है, और जो ब्लड वेसल्स हैं, नेम से आपको क्लियर है ब्लड वेसल्स, ये वो वाली ट्यूब्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है. इसका भी पूरी बॉडी में नेटवर्क है. तो जो नर्व्स है ये हमारी सेंसेस के लिए है, ब्लड वेसल्स ब्लड कैरी करने के लिए. यस, दिस इज students are writing dentine. That's good. Dentine is also the hardest, one of the hardest part of our body. ठीक है, ये इसकी भी हार्डनेस जो है बोन से ज्यादा होती है, बट इनेमल से कम होती है. ये जैसे आपको सेकंड प्रोटेक्शन देने के लिए आप अपनी बुक को पहले कवर करते हो, कवर के ऊपर आप लैमिनेशन कर लेते हो. तो जो लैमिनेशन पेपर है वो इनेमल है, जो कवर है वो डेंटाइन है, बुक आपका पल्प है. आप अपने पल्प को बचाने के लिए उस पर कवर एंड लैमिनेशन पेपर चढ़ा रहे हो. ठीक है, क्योंकि जब आपको कैविटी होती है, कैविटी के कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कितनी बार. जब भी कैविटी होती है तो वो सीधे पल्प को अटैक करती है. कैविटी क्या है? एक होल है टूथ में,
वो हो जाता है, आपका पल्प एक्सपोज होता है, आपको बहुत पेन होती है। यस, दिस इज डेंटाइन। नेक्स्ट इज दिस। स्पेलिंग, सुरुचित स्पेलिंग देखो डेंटाइन के आपने क्या लिखे हैं। Yes, all the students are writing gum. That's correct. It is gum. यहाँ पे आपने लेबलिंग पढ़ी है, बट एग्जाम में या टेस्ट में आपको बनाना भी आ सकता है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस बार आपको डायग्राम्स देखो बहुत है, तो आपने सारे डायग्राम्स बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज साइंस इज ऑल अबाउट डायग्राम्स एंड लेबलिंग ऑफ द डायग्राम्स। ये आप छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे फिर आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा कि डायग्राम्स बहुत स्कोरिंग होते हैं। Okay, so that's the end of science activity. Now, if you have any doubt, you can write your doubt in the chat box. वो मैम जिनके पास कोई डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हैं। बच्चे दोबारा बोलो।